Praise God. Worship is going on. Yeah, worshiping. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sit Yahweh. Hallelujah. It's true, I can't hear them. I think the connection. Praise, hallelujah. Hallelujah. Praise, hallelujah. You hear me, sister? Now I can hear you. Hallelujah. Praise. Just a second. Now the Bahia. Now that's exam last. So praise. Hallelujah. Just a second there. Let us do something with the sound. Hallelujah. You hear me, please? Yes, I can hear you. Yes. Hallelujah. Now your voice is very loud and clear now. Just a second. Okay. Just 1 second. So this is the time for the word of God, and we warmly welcome you in this wonderful evening, sister. On behalf of Brother Shimon, on behalf of Pastor Sam, on behalf of this wonderful congregation, we warmly welcome you and we celebrate you with a huge round of applause. I खुदा की खासा को सिस्टर ग्लोरिया को जोरदार तालियों में आपकी जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे. Hallelujah. उनको भी जोरदार तालियों में वेलकम करें. Praise God. Yes, please. Praise God. I'm very honored to be in your presence. Thank you for the opportunity. और मैं आपके मौजूद होने के लिए आपके साथ मिलकर यहाँ पर इबादत में शरीक और खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ. आइए जोरदार तालियां खुदावन के लिए. हालेलुया. For the very first time, I see you wonderful people in Pakistan. I hear a lot about you. May the Lord God bless you. और ये पहली दफा है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को देख रही हूँ. आपके बारे में सुना हुआ है, लेकिन आपको देखकर बहुत अच्छा लगा. खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे. आइए जोरदार तालियां. Praise God. But as you know, we are all gathered here in the name of our God.
the Lord Jesus Christ in his honor. So let us all together give him all the praise. और जिस तरह हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से और उसको जलाल देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो लाजिम है कि हम उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं जिस तरह हम इकट्ठे हुए। Hallelujah. 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 Glory to be his holy name. खुदावंद के नाम को जलाल मिले। I just want to thank Pastor Sam, Pastor Emmanuel, Brother Shema, and all the leadership there for opening this opportunity so we can share the word of God today in this hour. और मैं पास्टर सैम का इसके साथ जितने लीडरशिप यहाँ पर बैठी हुई मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मिलकर हमने ये प्रोग्राम किया ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। We are all together in the presence of God. Now expect your deliverance, खुदा expect के your हुजूरी में इस healing. वक्त मौजूद है ताकि हम खुदा से उसके जलाली हाथ के वसीला से अपने मौजूद को रिसीव कर सकें। Because the word of God says, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है no one can come in the presence of God and remain the same. और no one can come in the presence of God. Yes, no one can come in the presence of God and remain the same and be the same. और कलाम के अंदर लिखा है कि जब हम खुदा के सूरी में उसकी प्रेजेंस में आते हैं हम उसके बाद वैसे नहीं रहते जैसे हम घरों से आते हैं। हालेलुया। This means that wherever you come with in the presence of God, that is not from God, God will get rid of it. इसका मतलब है कि जब हम घरों से आते हैं हो सकता है कि हम अपने ज़हन में अपने दिलों में बहुत सारी फिक्रें लेकर आए जो खुदा की तरफ से ना हो, लेकिन खुदा की हजूरी में आने से खुदा उन सब को आपकी जिंदगियों से दूर कर देता है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. So be expectant and know that God is going to answer your need. तो इसका मतलब है कि जब हम उसके चरणों में आ जाते हैं तो हम ये तवक्को रखते हैं कि खुदावन हमारी दुआओं का जवाब देने वाला है। Amen. Now Amen. we are going to talk about the power and your authority to heal and drive out demon. अब हम जिस बारे में सीखेंगे वो है पावर और इख्तियार कि कैसे हम इनको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियों में से हर तरह के मसाइल को और बदबूहों को इख्तियार और कुव्वत के साथ निकाल सकते हैं। The purpose of this teaching इस टीचिंग का जो मकसद है is that not only you will receive your answer, इस टीचिंग का मकसद यही नहीं कि आप अपनी दुआओं का जवाब ले, but you will become the answer for others. बल्कि इसके साथ ये भी है कि आप दूसरे लोगों के लिए भी उनके सवालात के जवाब दे सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। So God is going to heal you and deliver you. तो खुदा आप में से बहुत सारों को आजाद करने और शिफा देने को है, so that you can also do the same to others, healing and deliverance. और ताकि जब आपके साथ खुदा ये करता है तो आप वही चीजें हीलिंग और आजादी का काम आप दूसरों के लिए भी कर सके। आमीन। Amen. So Jesus came to heal us. तो यीशु मसीह हमें शिफा दे सकता है, He came to give us the power to heal also. और उसकी जो कुव्वत है वो हमें आजाद कर सकती है हर तरह की मसाइल से। He came to deliver us. वो इसीलिए आया ताकि हमें आजाद करे, So we also to deliver others. ताकि हम अपनी आजादी तो हासिल करें, इसके साथ हम दूसरों को भी आजाद करें। So know that what is going to happen today तो इसके लिए परेशान ना हो कि क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर। you're going to have a double portion of power of God. आप खुदा की कुव्वत के साथ
आप यहाँ से दुगना शेर होकर जाएंगे जिस तरह आप आए हैं। हालेलुया। The power that is going to deliver you and heal you, वो कुदरत जो आपको आजाद करेगी और आपको शिफा देगी, and you are going to go home in your community with the power to heal others and deliver others. और जो कुदरत और पावर आपको आजाद करेगी, आपको शिफा देगी, वही कुवत पावर आप घरों में लेकर जाएंगे और वही कुदरत और पावर आप अपनी कम्युनिटी के अंदर जाकर दूसरों के लिए भी शिफा का बाइस बनेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, whosoever believe जो कोई मुझ पर ईमान रखे, this sign will follow. और उसका ये निशान होगा, They will heal the sick, वो बीमारों को अच्छा करेंगे they will deliver the captive, और वो जकड़े हुए को आजाद करेंगे, they will drive out demon. वो पत्रुहों को निकालेंगे। So this power of healing and casting out demon is for them who believe, and it's not just for pastors. और ये जो कुवत, ये जो इख्तियार है, ये सिर्फ खादमों के लिए नहीं बल्कि ये हर उस शख्स के लिए है जो मसीह यीशु पर ईमान लेकर आता है, और वो भी बदरूहों को निकाल सकता, बीमारों को शिफा दे सकता है। हालेलुया। And so if you believe, you will be able to do the same thing. तो अगर आप ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु पर, तो आप भी मौजूद को कर सकते हैं। And so now let us read the scripture from the book of Luke, chapter 9, from verse 1 to verse 9. The book of Luke, Yes. Chapter 9, from verse 1 to verse 9. So can You will we read? you will read for them. Yeah, let me read so that we can know what we Mhm. are. खुदा के कलाम में लूका की अंजील उसका 9 बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा, उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा, कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना दो कुत्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वही रहना और वही से रवाना होना, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। बस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदिस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बास कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बाज ये कि एलिया ज़ाहिर हुआ है, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदिस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूं। बस उसे देखने की कोशिश में रहा। आए मिलकर कहेंगे आमीन। आमीन। Amen. Now, in this passage we just read, there are two major things Jesus is saying here. अब ये जो हवाला हमने पढ़ा है, यीशु मसीह यहाँ पर दो मेन चीजें बयान कर रहा है। He gave the power, पहली चीज, उसने अपने शागिर्दों को कुव्वत दी, and the authority और उसके साथ कुव्वत के साथ इख्तियार भी दिया to drive out all demon ताकि वो कुव्वत और इख्तियार के साथ बदरूहों को निकाल सके and cure diseases. और हर तरह की बीमारी को अच्छा कर सके। This is the power that Jesus gave you and me. और ये वही कुव्वत और पावर है जो यीशु ने उस वक्त शागिर्दों को दी और आज भी जो उस पर ईमान रखता है आपको और मुझे दी है। हालेलुया।
We see in the story here that the people Jesus sent out, they went and healed the sick and cast out demons. और ये कुवत जिनमें आती है वो खुदा की कुवत के साथ बदरुओं को निकालते हैं। बच्चा ने कंट्रोल करो Because they believe. क्यों ये काम होता है? क्योंकि वो ईमान रखते हैं। So I want us to dive in a little bit deeper to understand the power and the authority and the work of the enemy. और इसके साथ मैं मजीद आपको कुवत और इख्तियार के बारे में बताना चाहूंगी ताकि हम मजीद इसकी डिटेल में बात कर सकें। The authority means that God has given you the right to exercise his power. ध्यान से सुनिएगा, ਜਿਹੜੇ लोग परेशान नहीं देना ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ It's like किस तरह ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। Yes. It's like if I take my credit card, my bank card, and give it to you. Let me give it. अब आपको सिंपल सी मिसाल से सिखाऊंगी कि मेरा अगर जो क्रेडिट कार्ड है बैंक का जो मैं मशीन में डाल के पैसे वो पढ़ ले हमने। Yes. Yeah. I'll give you a credit card, and then I say to you, you can go and spend whatever you want to buy with my credit card. It's mine. You buy whatever you want to buy with it. अब अगर मैं अपना क्रेडिट कार्ड आपको दे देती हूँ और मैं कहती हूँ आप सबको कि आपको जो जो चाहिए आप बैंक में से पैसे लो और जिन चीजों की आपको जरूरत है आप उनको खरीद लो जाके। That means that I have given you the authority to spend my money. इसका मतलब है कि मैंने आपको इख्तियार दिया है ताकि आप मेरे पैसे का इस्तेमाल कर सके। करोगे कि नहीं? कितने लोग कार्ड जेब च पा लें? So Jesus, yes. So Jesus give us the authority to use his power to drive out demon. तो खुदा ने अपना इख्तियार हमें दिया ताकि हम उसके इख्तियार का इस्तेमाल करें और उसकी कुव्वत के साथ हम जो भी काम करना चाहे कर सकें। Amen. Hallelujah. That means that you, as you're sitting there, you do have a power to command the demon leave. और इसका In the मतलब name है of कि Jesus. आप जितने यहाँ पर बैठे हैं आपके पास इख्तियार है उनके पास जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं होना कि इख्तियार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है। ਜਦੋਂ पता लग गया ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। Hallelujah. And so another thing is the power to actually drive them out and to cure diseases. इसका मतलब है कि आपके पास इख्तियार और कुव्वत है वो आपको इसलिए दिया गया है कि जब आप पर मुश्किलात आए आप कुव्वत और इख्तियार को इस्तेमाल करके हुक्म करें और चीजें यीशु मसीह के इख्तियार से आपके ताबिया हो जाए। आमीन। Amen. The power is referred to the Holy Spirit who brings changes. So when you speak, the Holy Spirit move and bring changes in the situation. पावर का जो मतलब है ये रूहुल कुदस की तरफ इशारा किया गया है यानी जब आप रूहुल कुदस को बोलते हैं पावर को बोलते हैं तो पावर के वसीला से चीजें आपके ताबिया हो जाती है। हालेलुया। Hallelujah. And so now you understand that you have the power available and you have the authority to use that power to bring change in your life. अब कितने लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है? आपके पास कुव्वत है और उस कुव्वत को आपने खुदा के इख्तियार के साथ इस्तेमाल करना है। हालेलुया। Praise the Lord. And so another thing we need to understand with this scripture is that demons are the one who cause sicknesses. Every sicknesses, every diseases, every complication in life are the manifestation of the demon power.
और अगर हम मसीह यीशु में हैं और हमारी जिंदगी में बीमारियां हैं, हमारी जिंदगी में बदरूहें परेशान कर रही है, या और कोई वजूहात हैं, उसके पीछे ये हो सकता है कि वो बदरूहों की वजह से हो। अब आपका क्या काम है? आपके पास कुव्वत भी है और आपके पास इख्तियार भी है। अब इस कुव्वत और इख्तियार का इस्तेमाल जो है वो हमने अपने खिलाफ उठती हुई ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल करना है। हालेलुया। So when you want to bring changes, you first deal with the demon that is causing the problem. And then you will find it easy to deal with the problem. और मैं बता दूं कि जब आपकी जिंदगी में तब्दीली का काम होगा, जब ये तब्दीली शुरू होगी, उस तब्दीली को रोकने के लिए सबसे पहला काम होगा कि बदरूहें आएंगी। ठीक है? तब्दीली होने से पहले बदरूहें आएंगी ताकि वो आपकी तब्दीली को होने में रोक सके, ताकि आपकी जिंदगी में, आपके खानदान के अंदर कोई तब्दीली ना हो। उसको रोकने के लिए बदरूहें आएंगी। ये पहला काम होगा। Hallelujah. And so when we arrest the spirit will go. And then the person will be free. That's when healing can then take place and circumstances can change. होगा क्या कि जब ऐसे माहौल होते हैं कि अगर कोई शख्स बदरूहों में गिरफ्तार है, अब होगा क्या कि जब हमारे पास कुव्वत और इख्तियार, हम उस कुव्वत और इख्तियार के साथ उस शख्स को आजाद करेंगे। उसके बाद उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुव्वत और हीलिंग काम करना शुरू करेगी। यानी उसकी जगह तब बनेगी जब आपकी जिंदगी में से बदरूहें निकल गई हैं, ताकि जगह बने, बदरूहां जिथे सी उत्थे जगह बने ते फिर उत्थे खुदा दी हजूरी है। हालेलुया। तेरे तो निकलन गए नहीं उत्थे हजूरी। Amen. And so we all do this not in our name, not in our authority, but in the name of Jesus. We must remember that. और इन सब को करने के लिए आपको याद रखना है कि ये आपके या मेरे नाम पर नहीं हो रहा, ये हो रहा है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। इस बात को ज़हन में रखना है कि ये सब यीशु के नाम से होगा और हो जाएगा। Because he is the one who defeated Satan and all the power of hell. और क्योंकि ये क्यों होगा उसके नाम के वसीला से, क्योंकि वही अकेला खुदावंद यीशु है जिसने मौत पर फतह पाई और जिसने हर गुनाह को पता किया, और उसने कहा कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। उसने हर एक चीज को मात दी है। And he's sitting at the right hand of the Father. और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अब वो अपने बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. Higher above all authority, above all name, above all powers. और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, और उसे सारा इख्तियार ज़मीन आसमान का यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया। Hallelujah. That's why when we speak, we cast out demon out. We command it in the name of Jesus, who is higher authority than that power, who is a God above that demon, and they will go because it's the highest authority. और जब कभी हम दुआ करते हैं लोगों के लिए, वो लोग जिनमें बदरूहें होती हैं, ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम से। और ये क्यों होगा? क्योंकि यीशु मसीह के पास हर एक चीज पर कुदरत है, हर एक चीज पर उसे इख्तियार है, और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं उसके नाम का, तो चीजों को पता चलता है कि यीशु के नाम से हो रहा है। इसलिए वो बदरों को छोड़ती और छोड़कर भाग जाती है। यीशु के लिए जोरदार तालियां जो करता है। Hallelujah. You understand that then when a headache comes, when you are sick, you can speak to that headache, you can speak to that situation in the name of Jesus, who is higher above that name, whatever that is, that which is that, it will go away.
और जब कभी हमारी जिंदगी में बीमारी आती है, जब कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा काम आता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, वो दुनियावी है, तब आपका काम है कि उस आला इख्तियार रखने वाले यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करें, और यीशु मसीह के नाम से आप अपने बदनों के अंदर, अपने काम के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली को देखेंगे। हालेलुया। Hallelujah. And so what we are going to do, this gathering, is that all together we are going to exercise this authority and this power. अब जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। एक्सरसाइज का मतलब है कि जो कुव्वत और अथॉरिटी आपके अंदर है, आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना। Hallelujah. And so all of us, we are going to use the name of Jesus. I'm going to pray for you, but I want you to experience this God yourself. I want you to know that your faith can heal you. अब मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज करने वाली हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए दुआ करूंगी, और फिर आपने मुझे बताना है कि जो मैंने नाम लेकर दुआ की है उसने आपकी जिंदगी में कैसा काम किया है। ये अभी हम करेंगे एक्सरसाइज। हालेलुया। Hallelujah. So do you believe that Jesus Christ can change your life and heal your sickness, your diseases? पहली बात मैं पूछूंगी कि क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आपको ठीक कर सकता है, आपको शिफा दे सकता है? कितने लोगों का ईमान है? अपने पूरा हाथ ईमान है। दिखाएं, अपने हाथ ऊपर करके दिखाएं जरा, पता चले। Hallelujah. Hallelujah. ये करो। Hallelujah. Praise God. And so do you believe that you also can heal others and cast out demons? अब क्या आप इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि अगर खुदा की कुव्वत आपको शिफा दे सकती है, और आप यीशु की कुव्वत को लेते हैं, तो वही कुव्वत आपके जरिया से दूसरे लोगों को भी शिफा दे सकती है? कितने लोगों का ये ईमान है कि मैं दुआ करांगा तो फिर भी लोग ठीक होंगे? हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Praise be the Hallelujah. living God. And so we are going to go into prayer. I want you to believe. I want you to put your hand wherever you are hurting. If it's your head, you put on your head. If it's your tummy, you put in your tummy. If it's a place where you can't, you just put your hands on your shoulder, and we are going to pray. You're going to repeat after me, and you're going to command that any baggage that is in your body must leave in the name of Jesus. So explain that to them before we start praying. ये मैं दुआ करने लगी हूँ आपके लिए। अब उसमें मैं क्या करेंगे, आप में से जितने लोग बीमार हैं, अगर आपके सर में दर्द है, या दो बेटे के अंदर प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, शोल्डर दर्द है, शुगर का मसला है, कुछ भी है, आपको लगता है कि मेरे बदन के शीशा में है, आप अपने बदन के उस शीशा पर हाथ रखें। अब हम उसको यीशु के नाम में हुक्म करेंगे। जैसे मैं दुआ करूंगी, मैं कहूंगी, उसके बाद आपने मेरे पीछे दुआ करनी कि यीशु के नाम में ये हो जाए। उसके बाद आपने देखना ये होगा यीशु के नाम। अभी इसी वक्त हम प्रैक्टिस करेंगे। यस। Hallelujah. Father, in the name of Jesus, here is your people, oh God. They are hunger of you. They need the touch of your finger. Father, let the Spirit of God move in their midst. In the mighty name of Jesus, you will proclaim that in my body is the temple of God. I command any power that is destroying my body to leave in the name of Jesus. I command, my body is a temple of God, and I command any power, any spirit that is to destroy my body to leave now in Jesus Christ's name. Tell them. अब मेरे पीछे दुआ करेगा। खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम में जो भी बीमारी मेरे अंदर है, मैं उस पर हाथ रखता हूँ। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूँ, ये अभी इसी वक्त चली जाए यीशु के नाम में, क्योंकि ये मेरा बदन
खुदा का मकदस है, खुदा इसमें रहता है, बीमारी इसमें नहीं ठहर सकती। अभी इसी वक्त यीशु के नाम में बीमारी निकल जाए, मैं तुझे हुक्म करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, Hallelujah. And now, हालेलुया। and here you put your hands on your body. Now you're going to speak to your body. अब आपने अपने 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 हाथ को अपने बदन पर रखना है। अब एक लाइन जो मैं आपको बताऊंगी, आपने मेरे पीछे बोलना है उसको। And say to your body, और अपने बदन से आपने ये कहना है, अपने अपने बदन से आपने। you body, अब आपने कहना है, ऐ मेरे बदन, अरे मेरे बदन, hear the voice of God. खुदा की आवाज को सुन। की आवाज को सुन। I command you in the name of Jesus Christ. मैं यीशु के नाम में तुझे हुक्म करता हूँ, Be healed शिफा पा। from the top of my head to the bottom of my feet. मेरे सर के बालों से लेके पांव के तलवों तक I command a total healing inside out in Jesus Christ's name. मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में मुकम्मल तौर पर शिफा पाऊं। शिफा पाओ। In Jesus Christ's name. यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। Hallelujah. And now I'm going to pray for you. अब मैं आपके लिए दुआ करूंगी। Father, in the name of Jesus, as they are sitting, they are under your authority and the movement of the Spirit of God. As the Spirit of God was moving over the surface of the water, may the Spirit of God move above them, in them, and through them right now, bringing healing, bringing restoration, bringing deliverance in the mighty name of Jesus, changing circumstances, delivering in the name of Jesus Christ, breaking the yoke, breaking the chain, deliver them. Dikabando karapro kosamitabana oskataya, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. I want you to begin to move. Check your body. How you feeling? How do you feel? So somebody, you feel something? Did you feel the power of God hitting you? Explain. Sorry. यीशु के नाम में मैं इन बदनों के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम में ये हरकत में आ जाए और हर तरह की बीमारी इन बदनों को छोड़े। हुक्म करती हूँ यीशु के ख्याल से ये मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाए, मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाए। और यीशु मसीह ये करता है, मसीह के नाम से आमीन। अब आप में से कितने लोगों ने अपने बदन के अंदर सिस्टर कह रही है कि हीट को महसूस किया है, या कुछ आपने ऐसा महसूस किया जो आपसे पहले नहीं हुआ? तो कह रही कि आप मुझे बताएं कि कैसा फील हुआ है आप। Praise God. Begin to do something that you couldn't do before. If you couldn't walk, stand up, check your body. आप में You से see- जो अच्छी तरह नहीं चल सकते थे, अब मैं ये कहूंगी कि वो उठकर जरा चल कर देखें। जो आपसे काम दुआ करने से पहले नहीं हो रहा था, अब मैं कहूंगी कि वो काम आप करें जो आप दुआ करने से पहले नहीं कर पा रहे। अगर दर्द आप थी, जो प्रॉब्लम थी उसको चेक करें कि ये प्रॉब्लम दर्द थी तो उसको है या नहीं है, इसको चेक करें। जहां जहां आपने हाथ रखे हैं, Hallelujah. शुक्र है। Check your body. Check your body. How you feeling? Are you still feeling pain? अगर किसी को ठीक है। बॉडी के अंदर पेन हो रही थी, दर्द हो रही थी, आगे तो आप चेक करें कि क्या ये हो रही है। यीशु के नाम में ये आ चुकी है। कहते मेरे दर्द तो भी ठीक हो गया। आपे कहता मैं नहीं किया, आपे कभी इधर आ मैं नहीं तो किया। 10 हौसला अफजाई हो गए तो बीमार भी कोई गया तो भाई सारे ठीक ही ने पाकिस्तान के। हाँ, Praise Sister, God. Yes. this young boy, और he भी was लोग हैं तो feeling भी pain हो जाओ। it's I think कहीं on the left side of the heart, but Uh-huh. now he's better, he's fine, thanks Lord. Praise God. Hallelujah. We seal that healing completely in the mighty name of Jesus Christ. Amen. यीशु के नाम में मुकम्मल तौर पर शिफा बरकरार रहेगी, इसके साथ जुड़ी रहेगी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, और आमीन। Hallelujah.
Let's give a clap to Jesus. Hallelujah. उसी के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. Praise God. So anybody feeling something? Anybody? Did you feel the presence of God touching you? आप में से कोई ऐसा हो जो ये महसूस कर रहा हो कि खुदावंद ने मुझे टच किया है, खुदावंद ने मुझे छुआ है, तो आप बता सकते हैं ताकि खुदा के नाम को दुआ दो। अल्लाह सारे में पहले टच हुआ है, कोई भी नहीं Praise. टच है। हालेलुया, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ हालेलुया, यस, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ आमीन। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ और ਪੀਠੇ कहनी मैं गलत तर्जुमा करना। सिस्टर, देयर इज नो वन लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग एनीवन God. देयर, या Praise Jesus. Hallelujah. So what is going to happen is that as you go home, ਸਮ ਭਾਈ आइयो बिना ਹਰ अब जब इसके बाद आप घरों में जाएंगे होगा क्या, मैं बता दूं आपको, जल्दी आ जाओ। देयर इज वन लेडी हु इज praise कमिंग। God. बेटा एक थोड़ा पर आओ, मैं उधर नजर आवे, इधर आओ। अब बच्चे थोड़ा पीछा करो, किंदा बच्चे ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ तो मेरी शुगर ना पैर दर्द करते पैर से ठीक होगा। उनसे He was having the pain in the feet, and but Lord, after the prayer, she's completely fine. Hallelujah. Now it's Hallelujah. complete in the mighty name of Jesus. No more pain in your body. No more in the mighty name of Jesus. We proclaim a total healing from the top of your head to the bottom of your feet in the mighty name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Jesus. कहते कि आंटी कह रही थी कि मेरे पैरों से दर्द हो रही थी, तो बैठी थी बाबा, लेकिन मैं दुआ के दुआ की चुकी तो मैं ठीक हो गया। हालेलुया। शर्माया ना करो। ਯਾ ਬੀਬੀ ਹੈਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆ हेड में उठा। पहले बहुत ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ There is one more. Actually, it's a Pakistani culture. They always shy. They are looking for the one person who will be first, so that after that we can start. This is the culture, and all the people are following the culture. पीछे हो थोड़े मेरे नजर आ रहा है यार, बड़ी दर्द हो रही है, दुआ करें उस बात से चुप करके क्यों बैठे? ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਆਈ सारे ਨਹੀਂ लोगों ने वो कहते इंतजार करते रहंदे भी केड़ा पहला उठे, ते जे ना उठया ते गवाही उत्थे दी उत्थे बैठी। Hallelujah. Actually, she was having pain in the legs, but while you were praying, I'm completely fine. Thanks, Lord. Hallelujah. Praise be the living God. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we command a complete healing by the blood of the Lamb of God from the top of your head to the bottom of your feet. In Jesus Christ's name, we seal it in the blood of the Lamb. खुदावंद यीशु के लहू से और बर्रे के खून से मैं इसको, इस गवाही को सील करती हूँ। ये मतवातर इसके साथ जुड़ी रहेगी और तेरी बंदी मुकम्मल तौर पर ठीक रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ਆਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ हाँ, जाओ ठीक Hallelujah. है। ਮੇਰੇ ਕੋਲ बाद में क्या बोलते हैं? Yes, so please, you were saying when you go home, what will be the next when you will go home? Yes, when you go home, some of you, you're going to have a dream. You might find yourself, the angel will be talking to you. Some of you, your prayer, you begin to pray. Some of you, you begin to see vision. You see things that will happen. This is the work of the Holy Spirit. Hallelujah. Some of you, maybe, ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੀਬੀ okay. अब यहाँ से जब आप दुआ करके घरों में जाएंगे होगा क्या? आप में से कुछ लोगों को ख्वाब आएंगे, ठीक है? तो लोगों को ऐसा लगेगा जैसे फरिश्ते आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको खुदा रोया में आपसे बात करेगा। जब आप यहाँ से जाएंगे आपको ख्वाब आएंगे। Yes. Praise God. And so Amen. I want you, when you begin to see these things, you stop praying. You pray so that the Spirit of God will continue to work and work more and more. Some of you, you might not have been healed now,
but as you go back home, you will find that you will be healed on the way. Some of you might take a few days for you to notice that you are completely healed. Tell them. तो होगा क्या कि जब घरों में आपको ये ख्वाब आते हैं, आपको लग रहा है कि खुदा मुझसे बात कर रहा है, आपको पैगाम दे रहा है, उस वक्त आपने करना क्या है, आपने उठकर दुआ करना शुरू कर देनी ताकि खुदा ज्यादा बात करे। आपको खुदा अपने बारे में और आपके बारे में आपसे बातचीत करे। और उसके बाद अगली बात, जब आप यहाँ से जाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग रास्ता में ही फील करेंगे खुदा की कुव्वत आपके अंदर काम कर रही है, और कुछ घरों में जाकर इसको महसूस करेंगे। आए खुदा की जलाल में जोर Hallelujah. And now we are going to go to the second part, which is the impartation, where God will give you the power and the authority to do the same that you saw today to others. और अब मैं एक और चीज आपको सिखाऊंगी, थक तो नहीं करें, थक जाए 10 दिन में, शर्माना ना। दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगी कि जब आपके अंदर यीशु मसीह को कबूल करके कुव्वत आ गई है, अब आप इसको इम्पार्टेशन यानी आप इसको मुंतकिल कैसे करेंगे ताकि आपके अंदर से कुव्वत निकले और दूसरे लोगों को शिफा दे। ये कैसे होगा? When you're going to receive this impartation, I want you to begin to practice it. अब मैं जब आपके लिए दुआ करूंगी तो आप खुदा की कुव्वत को पाएंगे, आपके अंदर वही कुव्वत आएगी जो खुदा के बेटे यीशु मसीह के अंदर थी। अब उसके बाद आपने उस कुव्वत के साथ क्या करना है, ये भी हम सीखते हैं। When you hear somebody has pain, lay hand on them and pray. Command that pain to go and watch. ये जब मैं आपको दुआ करूंगी, आपके अंदर कुव्वत है, तो आपने इसके साथ क्या करना है, आप घरों में जाकर या किसी जगह पर आप देखते हैं कि कोई बंदा बीमार है, तो आपने उस कुव्वत का इस्तेमाल वहां पर करना है, उस पर हाथ रखने हैं और कहना है कि मैं यीशु के नाम में हुक्म करता हूं कि ठीक हो जा। ये आपने करना है काम। Hallelujah. So begin to practice what you saw us doing today. Do the same in your home, for your friends, in your neighborhood, of your family. अब जो कुछ आपने यहाँ पर देखा है, मैंने आपके साथ आपको करके दिखाया, दुआ करके, यही आपने घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी फैमिली के अंदर, आपके दोस्तों के अंदर, आपके जहाँ पर काम करते हैं वहां पर कोई बीमार है, तो आपने इस प्रैक्टिस को करना है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर आपने कहना है यीशु मसीह के नाम में मैं हीलिंग को रिलीज करता हूँ, शिफा पाओ। Amen. Now I'm going to pray for all of you. अब मैं दुआ करूंगी ताकि आपके अंदर आए, ताकि आप उसका इस्तेमाल करें। आप आंखें बंद करें। Father, as the day of Pentecost, that the Spirit of the Lord God came heavily on the disciple, and it gave them the power, and they begin to speak in diverse tongues, and they will be able to do miracles, signs, and wonder. Father, I ask in the name of the Lord Jesus Christ, let there be an outpouring of the power of the Most High, the baptism of the Holy Spirit in this church, from all the leaders to the children, to mothers, to fathers, in the mighty name of Jesus Christ. Every member, everyone sitting here today on the sound of my voice, in the name of Jesus Christ, be impacted by the power of the Most High, to rise by the Spirit and begin to move by the Spirit and begin to speak by the Spirit of God. In the name of Jesus, take over the land, oh God, and subdue the enemy. Let it be like a wildfire in the name of Jesus, spread across the land. In Jesus Christ, light this one, oh God, as one will light a lamp and release them in the kabando koropro koshoko like a wildfire in the name of Jesus, to do signs and wonders in your name, in Jesus Christ's name. Amen. दुआ करती हूँ सबके लिए, रूह कुदरत की कुदरत जो ईद पेंटिकोस्ट के दिन तेरे शहीदों पर नाज़िल हुई थी यीशु के नाम में, वही कुदरत, वही आग, वही कुदरत इनके बदनों में लगे और वही तेरी हसूरी इनके बदनों में आए। मेरे खुदावंद, जब ये घरों में जाए तो इसकी प्रैक्टिस करे और उस कुव्वत के साथ बीमारों को अच्छा करे, बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद करे और तेरी कुदरत इन्हें पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करे, यीशु मसीह नासरी के नाम से,
आमीन। आई मिलकर कहेंगे आमीन। Hallelujah. So I will hand it over to Pastor Sam and Pastor Emmanuel and Brother Shemuel to conclude the service. So I thank God, and may the Lord God bless you. Thank you for the opportunity. I hope the Lord God will plan again where we will meet again. And I'm looking forward to come to see you in person. Pray for me, and I'll continue to pray for you as well. और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मौका मिला, पास्टर सैम, पास्टर मैनुअल, भाई शमो, हम सब ने मिलकर ये प्लान किया और मैं आपके साथ कलाम को शेयर कर सकूं। खुदावंद की मर्जी से अगर खुदावंद ने मुमकिन किया तो यहाँ पर आकर आपके खूबसूरत प्यारे से वाइट और काले माले जो भी चेहरे हमको देख, ठीक है, जेडे काले ने मेरे मतलब काले ने दारी जेडे गोरे ने गोरे ने जिवें रूम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਗ੍ਰਾਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗ੍ਰਾਮਤ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਨਾਲ ਬਲੈਸ करे। So let us sing one song and after that we gonna finish the service. Okay. But be with us in a song so that you can Yes. see how we worship and everything, okay? Yes. Yeah, photo someone साहब अच्छा रखो जरा। ਸਵਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਈ प्रभु यीशु के नाम इस कलाम की कसरत से तो बरकत दे ताकि घरों में जाकर प्रैक्टिस करें। आमीन। आइए आखिरी गीत गाते हैं, अपनी हदिया निशाने खुदा के सुनी में देते हैं। जोएल है जोएल को लाओ। भाई मैं देने सोते ये वही ना। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਪਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਤ ਰਾਦਾ ਕਰਦਾ आइए जी आखिरी गीत गाते हैं। ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? गाते हैं, गाना भी इसमें उठाएंगे और इसके साथ खाना शाना वो भी। जल्दी जरा लाओ जो कुछ है दे मैं अच्छा अच्छा आयु भाइयों ऐसे आओ, इधर आओ।
Not here, but they're worshiping. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So we are चर्च में नहीं आते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च में हर रोज 7 से 8 बजे वजह मीटिंग होती है आप उससे जा सकते हैं और ओए। शुरू में ऐसे ना करो, क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ है? कहाँ कर कहाँ लाते हैं? हम तो 2 मिनट तक all right. Sister Gloria, we are so much thankful to you. That was a powerful message. Your presence is really the very precious for us. You represented our Lord Jesus Christ among us. And we are so much thankful to you for your precious presence. On behalf of Pastor Sam, Brother Shimon, and every congregation, on behalf of our families, we are so much thankful to you, and we thank you with a huge round of applause. आए जोरदार तालियां खुदा की खादमा के लिए, खुदा के जलाल में जोरदार तालियां हम जाएंगे, आपकी जोरदार तालियों में. Oh, thank you very much. God bless you. आए हाथों को लहराकर, अपने दोनों हाथों को लहराकर बाय बाय Thank you करेंगे. very much. God bless you. Thank you for having me. दोनों हाथों को Bye bye. लहराकर. Praise, hallelujah.
Praise the Lord. Thank you for having me. Thank you. I'm blessed as well. Amen. very So much let us blessed and talk to you. Let us talk to you after this meeting over. We will call you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Talk to you later. Bye-bye for now. God bless. Bye-bye. ਆਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਖਾਣੀ ਦਾ